ہفتہ کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بلچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند کے سنا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں چند لوگوں کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہر ایک زندگی خداوند کی حضور دعا میں لاتے جائیں، اپنے اپنے لیے خدا سے کلام مانگیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں آج صبح کے لیے تیرے لوگ جو تیرے رسول سرنگو ہیں، جہاں جہاں پر تیری آواز سنی جائے تیرے لوگ برکت پائیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو ورد پڑھا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، اگر ہم اس گزرے ہفتہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 8 دن پہلے خداوند یسوع یروشلم میں شاہانہ جلوس کے ساتھ جب اس جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور لوگ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے کہ اے خداوند نجات دے، اے خداوند ہمیں بچا، تو یہی بات فقیہ، فریسی، شرح کے عالم اور اس دور کے جو نامور لوگ تھے انہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسی بات کی مخالفت میں، کیونکہ وہاں پر بھی وہ یسوع کو کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو چپ کرا، لیکن خداوند یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ نجات کے لیے جو خداوند یسوع کا اس زمین پر آنے کا مقصد تھا وہ بنی نوع انسان کی نجات تھی۔ اور یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی بات کی تکمیل کے لیے، اسی بات کو پورا کرنے کے لیے، خدا کی محبت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے
खुदावंद यीशु इंसान बनकर इस जमीन पर आया और अपने बनियों इंसान की निजात के लिए अपनी जान का कफारा दिया। फिर हमने जुमेरात की मीटिंग में इबादत में ये बात सुनी कि खुदावंद यीशु को बागे गतसमनी में पकड़वाया गया। उसके शरीर यहूदा ने बोसा लेकर उसकी निशानदाही की और रूमी सिपाहियों ने और शराब के आदमों ने बागे गतसमनी से यीशु को पकड़ा और फिर उसे मुख्तलिफ अदालतों का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि रोमियों ने खुदावंद यीशु के बदन पर बेशुमार जुल्म ढाए। किसी इंसान ने आज तक इतना दुख बर्दाश्त नहीं किया जितना खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया। अगरचे उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था और उसके किसी गुनाह ना होने के सबब से उसको कोई सजा वाजिब नहीं थी, तो भी मेरे और आपके गुनाहों को जब उसने उठाया, जब बनियों इंसान के गुनाह उस पर लादे गए, तो उन गुनाहों की सजा उसने कोहे कलवरी पर अपनी जान को कुर्बान करके गुनाहों की कीमत चुका दी। बड़ी इंसान की निजात के लिए, उसकी रहाई के लिए उसने अपनी जान का कफारा दिया। और कलाम खुदा में लिखा है, और हमने इन इबादत में यह सीखा है कि खुदावंद यीशु को जुमे के रोज सलीब दिया गया और फिर सब्बत की तैयारी से पहले उसे दफन किया गया, ताकि सब्बत जो यहूदियों के लिए आराम का दिन था, उससे पहले खुदावंद यीशु को जिसने अपनी जान का कफारा दिया उसे कब्र में उतारा जाए। और अरमतिया के यूसुफ ने यीशु की लाश पिलातुस से मांगी और उसने अपनी नई कब्र जो उसने अपने लिए खुदवाई थी यीशु के लिए पेश की और उसने 50 शेर खुशबू से कफनाया और दफन किया। और कलाम खुदा में लिखा है कि शराब के आलम फकीर फरीसी पिलातुस के पास गए और उन्होंने उसके आगे ये दरखास्त की कि जनाब, उन्होंने खुदावंद यीशु के लिए वहां पर एक बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। इस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसका ये पिछला धोखा पहले से भी बड़ा होगा। जब आप गौर से सुने, और जब पिलातुस को उन्होंने ये कहा कि इसने अपने जीते जी ये कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो पिलातुस ने कहा कि पहले वाले तुम्हारे पास है, आपसे जो हो सकता है, जितना उसके लिए कुछ कर सकते हो कर लो। और लिखा है कि उन्होंने रूमी सिपाहियों का कब्र पर पहरा लगा दिया, एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर रखा और फिर उस पर रूमी मोहर लगा दी, ताकि कोई भी आकर उस पत्थर को ना हटा सके, क्योंकि यहूदी ये जानते थे कि खुदावंद यीशु जो मौजूदात का खुदा है, जिसने अंधों की आंखें खोली है, जिसने लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिंदा किया है, जब उसने ये अपने लिए कहा है तो यकीनन जब वो जिंदा हो जाएगा तो फिर लोग उसके पैरों हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पिलातुस से ये कहा कि कब्र पर एक बहुत बड़ा पहरा बैठा दिया जाए, बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाए, उस पर रूमी मोहर लगा दी जाए, ताकि कोई आकर यीशु की लाश न ले जाए।
انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ ہو گیا تو پھر اس کا پہلے سے بھی زیادہ چرچا ہوگا، لیکن پلاطوس سے انہوں نے کہا کہ شاید اس کے شاگرد آ کر لاش چرا کر لے گئے اور وہ دنیا کو کہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے قبر پر بہت بڑا پتھر اس کے منہ پر رکھا اور رومی مہر لگا دی اور رومی سپاہیوں کا وہاں پر پہرا لگا دیا۔ ادھر سبت گزر چکا تھا اور علیہ صبح اتوار کا دن نکلنے والا تھا، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی اور دوسری مریم، اور مرکز اس کو بیان کرتا ہے کہ یعقوب کی ماں مریم اور مریم مگدلینی اور ان کے ساتھ سلومی، یہ تین عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر یسوع کی لاش پر لگانا چاہتی تھی۔ ان کے اندر یہ خواہش تھی، یہ عقیدت تھی یسوع کے لیے کہ وہ یسوع کی لاش پر جا کر خوشبودار چیزیں اس کو لگائیں، لیکن ان کے جذبات کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہیں ایک مشکل نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس قبر کے منہ پر تو بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کو ہمارے لیے کون لٹکائے گا؟ تو بھی وہ اپنے جذبات کو لیے ہوئے قبر پر چلی گئی، خوشبودار چیزیں لی، لکھا کہ وہ پھٹنے سے پہلے، روشنی ہونے سے پہلے، لگتا ہے کہ وہ ہماری طرح 2 بجے اٹھی ہوں گی، شاید اس سے بھی پہلے رات کو تیاری کرتی رہی خوشبودار چیزوں کی، انہیں وہ تیار کرتی رہی اور اندھیرے ہی میں وہ یسوع کی لاش پر لگانے کے لیے چلی گئی۔ جب جا کر دیکھا، جبکہ وہ یہ باتیں راستے میں کرتی جاتی تھی کہ ہمارے لیے قبر سے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا، جب وہاں پر پہنچی تو پتھر لڑکا ہوا تھا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ آسمان پر سے ایک فرشتہ سفید براق، سفید پوشاک پہنے ہوئے انہیں اس پتھر پر بیٹھا ہوا نظر آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ پتھر قبر کے منہ سے ہٹا ہوا ہے۔ میرے عزیز، یہ جو پتھر ہٹایا گیا تھا، جس کو فرشتہ نے آ کر ہٹایا، یہ اس لیے نہیں ہٹا تھا کہ یسوع قبر سے باہر نکل آئے۔ یسوع تو اگر پتھر قبر کے منہ پر رہتا تو بھی وہ قبر سے باہر نکل سکتا تھا، تو بھی وہ زندہ ہو سکتا تھا، کیونکہ کلام خدا میں سے آگر جا کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا یسوع کا جو زندہ بدن تھا وہ جلالی بدن ہو گیا، اور اس میں یہ قوت تھی، یہ قدرت تھی کہ وہ بند دروازوں سے بھی گزر جاتا تھا۔ جب خدا یسوع ان عورتوں کو بھیجتے ہیں اور شاگرد یہودیوں کے ڈر سے ایک کمرے میں دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو بند دروازوں میں یسوع ان کے بیچ میں آ کر کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ تو یسوع کا بدن جو تھا وہ جلالی بدن تھا، وہ روحانی بدن تھا،
मुकद्दस पौलुस खुदा यीशु को कहता है कि वो स्वयं में पहला फल है। अगरचे किताबे मुकद्दस में भी मिलता है कि खुदा यीशु से पहले भी मुर्दे जिंदा हुए हैं। बेवकूफ बेटे को यीशु ने जिंदा किया, लाजर को यीशु ने जिंदा किया। पुराने अहदनामा में अलीशा ने मुर्दे को जिंदा किया, अलीशा की हड्डियों से टकराकर एक मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन पौलुस कहता है कि खुदा यीशु मुर्दों में से जिंदा होने वालों में पहला फल है। इसके पहले जितने मुर्दे जिंदा किए गए हैं वो सब दोबारा मरने के लिए जिंदा हुए, लेकिन खुदा यीशु जो जिंदा है और फिर कभी मरने के लिए नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहने के लिए जिंदा हुआ है। और पौलुस इसीलिए कहता है कि वो मुर्दों में पहला फल है। खुदा में हमें मिलता है कि खुदा यीशु जब मुकाशफा की किताब में यूहन्ना पर रोया में ज़ाहिर हुआ तो खुदा यीशु ने खुद यूहन्ना से कहा, जब वो खौफ खा रहा था, जब वो डर रहा था उस पतमस के जजीरे में, खुदा यीशु को रोया में देखता है और डर रहा है, तो खुदा यीशु ने कहा, खौफ ना खा, मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब तेरा बाद जिंदा रहूंगा। हमारा खुदावन जिंदा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और फरिश्ते ने औरतों से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम जो कब्र पर आई हो किस लिए आई हो, तुम यीशु को ढूंढती हो, लेकिन यीशु यहां पर नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और देखो उसकी कब्र वो खाली पड़ी है। और जब औरतों ने कब्र के अंदर जाकर देखा तो सिर्फ कफन वहां पर पड़ा था, यीशु की लाश नहीं थी, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुका था। और कलामे खुदा में लिखा है कि यीशु खुदा की कुदरत से जिंदा हुआ। फिर लिखा है यीशु अपनी कुदरत से जिंदा हुआ। फिर लिखा है कि यीशु रूह कुद्दस की कुदरत से जिंदा हुआ। और कलामे खुदा में मेरे अजीज, जब ये इस फरिश्ते ने औरतों को देखा तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, लेकिन यीशु यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। फरिश्ते ने उन्हें याद दिलाया कि तुम याद करो जब यीशु गलील में था तो उसने कहा था कि मैं आदमियों के हवाला किया जाऊंगा, वो मुझे मसरूफ करेंगे और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे अजीज, खुदा यीशु आज मुर्दों में से जिंदा हुआ है, जिसकी हम खुशी में ये जिंदा होने का जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर फरिश्ते ने औरतों से कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, अब वो जिंदा हो गया है। और फिर कलामे खुदा में लिखा है, फरिश्ते ने कहा कि जाकर उसके भाइयों को बताओ। जब औरतें बड़े खौफ और खुशी से वापस जाने लगी तो फिर यीशु भी उन्हें मिला। और लिखा है कि उन्होंने झुककर यीशु के कदमों में सजदा किया। तो खुदा यीशु ने उन्हें एक मैसेज दिया कि जाकर मेरे भाइयों से कहो कि वो तुम्हें गलील को मिलेगा। और मेरे अजीज, ये सिर्फ उस कब्र पर औरतों के लिए जो मैसेज है उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है कि हमें फिर दोबारा कब्रों पर नहीं जाना है। हमें मुर्दों में से अपनी निजात के लिए किसी को नहीं ढूंढना, बल्कि हमारा कुरान यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, उसकी कब्र खाली है। अब वो हमें कहता है जाओ और दुनिया को बताओ कि यीशु जिंदा है। मेरे भाइयों को बताओ, शागिर्दों को बताओ। और फिर खुदा यीशु आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को भी यही मैसेज देता है कि बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और आज हमारे लिए
ऊपर ले ली है, हमारे दुख उसने अपने बदन पर लिए हैं। मुकद्दस पतरस अपने खत में कहता है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए शरीर पर चढ़ गया। मेरे अजीज, अगरचे हम जानते हैं दूसरे जुमा के दिन हमने इन सारी बातों को सुना है कि यीशु के जिस्म पर बेशुमार जख्म लगाए गए, लेकिन आज का पैगाम जो है, हमें ये पैगाम मिल रहा है कि यीशु ने जो औरतें कब्र पर गई उनसे कहा कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि वो जिंदा हो चुका है, वो कब्र में नहीं है, अब कब्र की तरफ आने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया को ये बताना है कि हमारा खुदावंद यीशु मुर्दों में से जीवित है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसने कहा है, ऐ मौत तेरा दम कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ गई। मौत फतह का लुकमा बन गई। हमें भी आज इस समय में यही पैगाम लेकर दुनिया तक जाना है कि हमारा खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसने बनी हुई इंसान के लिए अपनी जान का कफारा दिया है। वो कब्र में उतारा गया है, लेकिन कब्र उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकी। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। अब सब कौमों को, पूरी दुनिया को उसकी इस अजीम फतह में शामिल होना है। उसके मुर्दों में से जिंदा होने को मानकर इस पर ईमान लाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। उसकी जिंदगी में खुदा का निजात का मंसूबा पूरा होगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आज हमें कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को, वो जो यीशु से नावाकिफ हैं, जो इस सच्चाई से नावाकिफ हैं, उनको ये पैगाम देना है कि खुदावंद यीशु ने बड़ी हुई इंसान के दुखों के लिए, उनकी बीमारियों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, उनकी मुश्किलातों के लिए, उनकी खस्ताहाली के लिए, उन्हें बहाल करने के लिए, उन्हें बाप के साथ मिलाने के लिए, निजात देने के लिए इस जमीन पर दुख सहे हैं, अपनी जान का कफारा दिया है, सलीब पर वो चढ़ा है, कब्र में उतारा गया है, लेकिन उसने मौत और कब्र पर, गुनाह पर, अपनी इस पर फतह पाई है। और आज जो उसकी अजीम फतह को कबूल करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा, वो अब हलाक नहीं होगा, बल्कि वो जिंदगी पाएगा। जिस तरह खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसका बदन जलाली था, उसका बदन रूहानी था, उसके बदन में ये कुदरत थी कि वो बंद दरवाजों से भी गुजर सकता था। जितने यीशु पर ईमान लाएंगे, वो सब जब यीशु के कहने पर जिंदा किए जाएंगे, तो फिर दोबारा मरने के नहीं होंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मुर्दों में पहला फल है और वो जिंदा हुआ है ताकि अपना वास जिंदा रहे। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे, जब वो कब्रों में होंगे या उसके आने पर जिंदा होंगे, वो यीशु के कहने पर मुर्दे उठ खड़े होंगे, और जो जिंदा होंगे
खुशखबरी देंगे कि जो यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें, आए इस अजीम खुशखबरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इस अजीम खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यीशु के हुक्म पर उठ खड़े हों। हालेलुया। धीमी आवाज में दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करें। हमारे खुदा यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, ललकारा है, अजीम फातेह हुआ है, कोई उसकी मालिक नहीं है ना होगा। वो मुर्दों को जिंदा करेगा जिस तरह खुद जिंदा हुआ है। हम प्यारे भाई अरशद साहब के साथ मिलकर अजीम फतह के लिए खुदा को मुबारक कहेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और ये दुआ करेंगे कि हम सब यीशु के कहने पर पूरी दुनिया को ये खुशखबरी दें कि हमारे खुदा यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है और जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा।